Hello, dear students. Welcome to the class today. So, children, we are carrying on with this first chapter in geography. We have started in it yesterday, children. Started this new chapter in the last class, and something that was very remarkable that I wanted to tell you, children. This chapter, please don't look at it as a geography chapter. No, I mean to say it's a geography chapter, of course, but then it is more of general awareness. It is more of general knowledge. So consider this chapter as a part of your knowledge enhancement. आपको ये all through your life, because you should always know this. I told yesterday also in the class that you should always know about the country where you are residing in. जहां आप पैदा हुए, जहां आप बड़े हो रहे हैं, जहां पे आपकी एजुकेशन हो रही है, उस देश के बारे में यू मस्ट नो ईच एंड एवरी निटिग्रिटीज. हर एक छोटी छोटी जानकारी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंडिया के बारे में ये है चिल्ड्रन दैट इट इज अ बिग कंट्री. जो जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट वी हैव स्टडीड yesterday was that it has its location is very important, and size में अगर हम देखें तो it is the 7th largest country in the world. इतनी सारी कंट्रीज में 7th पोजीशन आना, that means India has got lot of land mass, lot of places which we need to know properly. ऐसी बहुत सारी जगह है जो कि हमको अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है. Now, latitude में what we have discussed is 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minutes north is the latitude. Longitude is 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east. Got it? Yesterday I had told you that I'll be showing it to you in the book itself. आज मैं आपको दिखाऊंगी these latitudinal and longitudinal extent of India. पूरी तरह से पता होना आपको बहुत जरूरी है. Then we have we are means India. Being an Indian, मुझे लगता है पूरी whole country is of course it's my country. So we are situated totally in the northern hemisphere. इक्वेटर है ऑन दी. एक बार फिर से बना देती हूँ जस्ट फॉर योर आइडिया. दिस इज व्हाट इज द वर्ल्ड. ये है इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंड वी आर हियर. ठीक है, ये इंडिया यहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, जस्ट आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्रॉइंग सो डोंट एसेस, लेकिन हाँ लोकेशन इज एग्जैक्टली दिस. ये लोकेशन तो पक्की पक्की ये लोकेशन है, ये मैं आपको बता सकती हूँ. अंडमान एंड निकोबार है इन द बे ऑफ बंगाल, एंड लक्षद्वीप है इन द अरेबियन सी. छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बट दीज स्टेट, these union territories, Andaman and Nicobar and Lakshadweep, directly under the center. All the orders that are issued are through center. Very important places in India. हमारे पास टोटल जमीन कितनी है, हाउ मच. आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट चिल्ड्रन बिकॉज आई टोल्ड यू दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. जब इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए. जस्ट अ ब्रीफ रिमाइंडर दैट लैंड मास, हमारे पास जमीन कितनी है इन इंडिया. इट इज 3,23.28 million square kilometer. Got it? 3.28 million square kilometer. Total area is 2.4%. 2 point, जितना भी geographical area is there in the world, उसमें India has got 2.4%. लैंड मास ही हमारे पास कितना है अभी, तो सबसे ज्यादा तो वाटर है इन द वर्ल्ड ऑन दिस अर्थ. उसमें जितना भी लैंड पीस है उसमें 2.6% हमारे पास है, इंडिया के पास है. गॉट इट? सो इंडिया हैज, बाउंड्री कितनी बड़ी है इंडिया की. प्लीज सी दैट इंडिया हैज a land
boundary of 15,200 kilometer. 15,200 kilometer in length. Big boundary. Of course, we are the 7th largest nation. तो उसका जो एरिया होगा, उसका जो सराउंडिंग होगा, इट हैज टू बी बिग. एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स क्या है? इट इज 7,000. अंडमान एंड निकोबार is 7,516.6 kilometers. आइलैंड इंडिया को एक तरफ से हमको मेजर करना होता है. एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि इंडिया का मेजरमेंट में ही अंडमान एंड निकोबार इज ऑल्सो इंक्लूडेड. सो 7,516. अंडमान एंड निकोबार छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स है. When you see Andaman and Nicobar in the Bay of Bengal, then you will be finding so many small islands that are there in this island area which lies in the Bay of Bengal. Then we have the Young-Fold Mountains in the northwest. In what happens is, in northwest there is Young-Fold Mountains. Got it? पहाड़ हैं बहुत सारे. And Young-Fold Mountains खाली नॉर्थ वेस्ट में नहीं है. It is in the northwest. It is also stretched in north and northeast. Okay, तो साउथ में क्या है? अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर. मतलब जो लैंड मास है विच इज लाइक दिस, इट सडनली स्टार्ट्स बिकमिंग narrow. Broad land piece starts becoming narrow. Taper means tapering and extends towards Indian Ocean. और ये लैंड मास जाके कहां पे आता है? इंडियन ओशन के ऊपर आता है. 2 seas there, Arabian Sea and Bay of Bengal on its east. Arabian Sea is on the west, and in south the land mass tapers. Please, again I'm saying it is this way, and here we have the Indian Ocean. ठीक है, यहां पे क्या है? बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है? अरेबियन सी. चारों तरफ हम समुद्र से घिरे हुए हैं. We are surrounded by sea from not चारों तरफ से नहीं, सॉरी, 3 तरफ से, 3 sides, east, south, west, south and east. नॉर्थ में तो लैंड मास है ना, नॉर्थ में तो हिमालयाज हैं, ग्रेट हिमालयाज. ओके, यस ऑफ कोर्स ग्रेट हिमालयाज. एक तरफ समुद्र है, एक तरफ माउंटेन है. वी आर रियली लकी एनफ टू हैव दिस काइंड ऑफ अ लैंड फॉर्म. इस तरह का लैंडफॉर्म बहुत ही कम कंट्रीज में है, जहां पे कि समुद्र भी है, पहाड़ भी है, जंगल भी है. एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर द इंडियन पीपल. आपको जो एंजॉय करना है वो आपके पास है. यू वॉन्ट टू गो एंड एंजॉय इन द माउंटेन्स, गो टू द नॉर्थ. यू वॉन्ट टू गो एंड एंजॉय इन द सी, go to the south. And you want to enjoy in the desert, go to Rajasthan. You want to enjoy forest areas, greenery, mountains, go to northeast. So that is what is the beauty. Okay, and tapers and finishes in Indian Ocean.
नॉर्थ में तो आपको पता है यहाँ पे हिमालयस है, ये है, दिस इज द साउथ एरिया जहां पे कि वी हैव द लैंड मासेस टेपरिंग और इंडियन ओशन में जाके खत्म होता है। अब क्या है, अगर हम इसमें कुछ फिगर्स हैं, आई विल बी शोइंग यू सम फिगर्स, तो वी विल बी सीइंग दैट हाउ द लैंड मास इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द mainland and east west extent क्या होता है, it appears to be smaller than the north south extent। ठीक है, जब हम पूरब पश्चिम को कैलकुलेट करते हैं तो वो उत्तर दक्षिण से थोड़ा सा छोटा पड़ता है। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज जस्ट विल मेक अ रफ स्केच ऑफ इंडिया। आई एम नॉट वेरी गुड इन मेकिंग, लेकिन ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्थ से साउथ जब हम देखते हैं तो नॉर्थ साउथ जो है, ईस्ट वेस्ट इज स्मॉलर, दिस इज स्मॉलर, एंड ये नॉर्थ साउथ जो है इट इज बिग। नॉर्थ मतलब कश्मीर इज द नॉर्दर्न मोस्ट एंड कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट, ये तो आपको पता होगा, यू माइट बी नोइंग इट वेरी वेल। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जब हम जाते हैं, when we move, ये गुजरात है, ठीक है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जब हम जा रहे हैं, देयर इज टाइम लैग ऑफ 2 hours, टाइम लैग ऑफ 2 hours, 2 घंटे का फर्क पड़ता है। ओके, ये जो 2 घंटे का फर्क पड़ रहा है, दिस इज अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इट इज वैसे तो आई मीन 2 hours का डिफरेंस इज देयर, बट टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इंडिया का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है दैट इज पासिंग थ्रू मिर्जापुर, इट इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। जो टाइम मिर्जापुर में होता है वही टाइम पूरी इंडिया में हम फॉलो करते हैं, चाहे दिन हो रहा हो चाहे रात हो रही हो, somewhere it is daytime, somewhere it is evening time, somewhere it is night, सनराइज जल्दी हो रहा है, सनसेट लेट से हो रहा है, all these things that are there, it is the phenomena of the change of directions। लेकिन अब पूरी कंट्री में कहीं पे 7 बज रहा है, कहीं पे 3 बज रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। We have to follow one standard time and that is what is followed from मिर्जापुर। जो टाइम मिर्जापुर में होता है वही टाइम ऑल ओवर इंडिया इज फॉलोड। Got it? Please understand. So, we have to understand time along standard meridian। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन of India passing through, ये लैटिट्यूड भी आपको नोट डाउन करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैटिट्यूड, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। दैट इज ये दिस नंबर यू हैव टू रिमेंबर, 82 डिग्री 30 minutes ईस्ट, 82 डिग्री 30 minutes ईस्ट कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू मिर्जापुर। गॉट इट? ये जगह का नाम आपको याद रखना है, आई विल बी शोइंग इट टू यू इन द बुक ऑल्सो। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूड कहां पे कितना है, दैट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये दिस वन वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस एक्सटेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। गॉट इट?
So the latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north. South से north के तरफ जब move करते हैं तो that is what is affecting the duration of day and night. कुछ कुछ स्टेट्स में बहुत जल्दी डे हो जाता है. सनराइजेस सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में सन इज राइजिंग. ओके, मिजोरम, मिजोरम है कि नागालैंड है, आई एम गेटिंग अ बिट कंफ्यूज्ड, जहां पे कि सबसे पहले देयर इज द सनराइज हैपनिंग. ओके, एंड day and night is decided through when somebody is moving from south to north, उससे day and night decide हो रहा है. अब we have to understand the location of India in the world. India and the world. पूरी दुनिया में इंडिया की जगह कहां पे है? India has got a central location. It is situated in between. बीच में लोकेटेड है. ठीक है, पूरी दुनिया में जब हम देखेंगे between east and west Asia. East and हम we are in the Asian continent ना. Every country is in some or the other continent. तो हमारा continent कौन सा है? Our continent is Asia. And एशिया में भी जो continent है उसमें there is north, south, east and west. So India is in South Asia. It's located in the South Asian region. Okay, and there is India से बहुत सारे sea is there, ocean is there, so there is Trans-Indian Ocean routes which is connecting, जैसे we are connected to Europe in the west and countries of East Asia. ठीक है, we are connected to Europe in the west. ठीक है, वेस्टर्न साइड से क्या होता है ना, वी आर एबल टू, यूरोप इज वेरी नियर बाय. गॉट इट. गुजरात से जो जहाज चलते हैं वो बहुत जल्दी ही यूरोप पहुंच जाते हैं. दीज ships that are there that easily reaches to Europe in very short time. तो वेस्ट में we are connected to Europe and Deccan Peninsula and East Asia and countries of East Asia. Not only Europe, मतलब East Asian countries से होते हुए हम बहुत जल्दी ही यूरोप टच कर लेते हैं. We are able to reach Europe in a very short span of time. Got it? This is there. And Deccan Peninsula, it protrudes, it moves, I mean it is extended to the Indian Ocean, Deccan region, that is south. अभी हमने बात किया था in the previous paragraph. So India is also able to establish contact with West Asia. वेस्ट एशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं एंड वी आर एबल टू एस्टैब्लिश अ गुड कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशियन कंट्रीज एज वेल. गॉट इट? तो इससे क्या हो रहा है, वी हैव गॉट स्ट्रैटेजिक लोकेशन. All the places, मतलब major places in Asia and major places in world are connected, easily connected to India. India has got a proper connection with the most parts of the Asian as well as the world countries. Okay, that is there. So no other country has a vast coastline as India. हमारा वो जो कोस्ट लाइन है ना, अगेन आई ड्रॉ दिस ओनली, ये जो कोस्टल रीजन है ना इंडिया का, इट इज द
largest, and India's eminent position is there in the Indian Ocean. Indian Ocean का जितना भी एरिया है, it is very well connected to the other parts of the world, and we are very proud of that. Many countries feel कि इंडिया का जो लोकेशन है, that is an added advantage to the business of India through the sea route. समुद्र पे हमारा कब्जा है, एंड आज से नहीं, इंडिया हैज कॉन्टैक्ट with other parts of the world, पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं through ages. काफी सालों से, ठीक है, through ages, काफी दिन से, काफी सालों से इंडिया का लोकेशन है, एंड land routes से भी we are connected to the other parts of the world. Land routes are much older than the maritime contacts. Land routes are much older than the maritime contacts. मतलब पानी के थ्रू लोग हमारे यहाँ बाद में आए, लैंड के थ्रू, मतलब वो जो राजस्थान एंड द एरियाज बियॉन्ड दैट, उधर से सो मेनी फॉरेनर्स हैव कम टू इंडिया, एंड इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम देम. सो इन रूट्स के बारे में, एंड it has provided passage to ancient travelers. India has provided passage to ancient travelers. पहले के जमाने में जो इंडिया घूमने के लिए आते थे, they used to come through this route, ancient travelers. Got it? अब ocean has restricted the interaction over a long period. ओशन के थ्रू भी हमारे कॉन्टैक्ट्स बने हुए थे अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ. ये जितने भी रूट्स हैं, all these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. जानते हो, people and movement from one country to the other country is very important. इसके वजह से पता चलता है कि हम किस किस चीजों में हम अच्छे से काम कर सकते हैं. सो द रूट्स हैव contributed इतना सारा कंट्रीब्यूशन है इन द exchange of ideas and commodities. सामान भी इधर से उधर जाता था. I mean, इधर से उधर means the transport used to happen, trade used to happen, ideas and commodity, and सामान भी जाते थे. सामान में तो we were very good in spices. मसाले हमारे यहाँ के बहुत फेमस थे, and so much in demand in the other parts of the world. जो साउथ में जो मसाले होते हैं उसको बहुत सारे लोगों का को डिमांड करते थे. And all the India ideas of Upanishad and Ramayan, stories of Panchatantra, it had reached to many parts of the world. पूरी दुनिया में हमारी जो टेक्स्ट हैं, हमारी जो बातें हैं, वो हमेशा से बहुत फेमस रही हैं. On the other hand, what happens? Greek sculpture has influenced the Indian architectural style. हमारे यहाँ पे the domes are there. ठीक है, these are called as the domes. Got it? So the structures that are there, the buildings that are there, this is the contribution of this is the Greek sculpture that has come from this route to India. Got it?
Just I wanted to show you the latitudinal and longitudinal extent of India on the map. Come, let's see the map. Students, as you know, we are carrying on with this chapter, India, size and location. This chapter, students, is very important from map point of view. मैप इस चैप्टर से आना ही आना है. देयर इज़ नो वे दैट मैप विल नॉट कम. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज़ साइज एंड लोकेशन. सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि वर्ल्ड में वेयर इज़ इंडिया सिचुएटेड, किस जगह पे इंडिया इज सिचुएटेड. दिस इज़ वेरी क्लियर. ये देखिए इक्वेटर है यहाँ पे. आई वुड लाइक टू शो इट टू यू. आई विल जूम इट एंड शो इट. आप ये देख लीजिए. हियर इज़ द पैसिफिक ओशन, हियर इज़ द अटलांटिक एंड इंडियन ओशन आप देख रहे हैं. दिस इज़ व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया. तो ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं नीचे में ये डॉट डॉट डॉट, दिस इज़ व्हाट इज़ इक्वेटर. तो इक्वेटर के नीचे इस, इक्वेटर के ऊपर इज़ नॉर्थ. तो इंडिया इज़ इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. उसके बाद जो इंडिया से द लाइन दैट इज़ पासिंग इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये चिल्ड्रन प्लीज सी फ्रॉम हियर इज़, just see the tropic of cancer here. 15 डिग्री नॉर्थ इज़ हियर. और इसके ठीक ऊपर में, थोड़ा सा ऊपर में 23 डिग्री के आसपास इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड ये स्टैंडर्ड मेरिडियन आप देख लीजिए, यहाँ से पास हो रहा है, विच इज़ पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर. ओके. अब एक और आपको मैप देखना है. ये देख लीजिए. दिस इज़ व्हाट इज़ द लोकेशन, आई मीन द सेवेंथ लार्जेस्ट. हम सेवेंथ लार्जेस्ट क्यों कह रहे हैं? ऑल द कंट्रीज अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया वाइज द लिस्ट इज़ गिवन हियर. रशिया कहाँ पे है? फर्स्ट इज़ रशिया, सेकेंड इज़ कैनेडा, थर्ड इज़ यूएसए, फिर चाइना, देन ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड सबसे लास्ट में नहीं, मतलब सेवेंथ प्लेस पे इट इज़ इंडिया. ओके चिल्ड्रन, ये याद रखिएगा. इट हैज़ गॉट द लैंड दैट इज़ देयर. उसके बेसिस पे इंडिया हैज़ बीन पोजिशन्ड इन द सेवेंथ पोजिशन. 7 इज़ अ वेरी लकी नंबर. ठीक है, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हम 7 नंबर को बहुत लकी मान सकते हैं. ये ऐसे ही थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान शेयर करने का मन कर रहा था. दैट इज़ वाई आई वॉज शेयरिंग इट विथ यू दैट सेवेंथ पोजिशन इन द वर्ल्ड इज़ दैट पोजिशन जो कि डे विल कम व्हेन इंडिया विल बी रूलिंग द होल वर्ल्ड. ओके. नाउ द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख लीजिए. दिस इज़ व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल. ये यहाँ पे देखिए 97 डिग्री 25 मिनट्स. हियर इज़ 68 डिग्री 7 मिनट्स. ठीक है, गुजरात से लेके दिस इज़ द एक्सट्रीम अरुणाचल प्रदेश. सबसे पहले सनराइज़ यहाँ पे होता है. इसके बाद लुक एट द नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर 2933 किलोमीटर्स. मैंने कहा चिल्ड्रन दिस इज़ जीके, दिस इज़ नॉट ज्योग्राफी. जीके के हिसाब से ही इसको करना है. इसके बाद आप देख लीजिए साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ पे ये दिस हैज़ गॉन अप एंड इट कम्स हियर 37 डिग्री 6 मिनट्स हियर. ठीक है, this is what is the extent. Now we come to the 3214 kilometers. 3214 kilometers is the extent of the north south. नॉर्थ साउथ जो है वो ईस्ट वेस्ट से ज़्यादा बड़ा है. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. हाँ, अब ये देख लो, अंडमान एंड निकोबार काफ़ी दूर तक फैला हुआ है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड extend to quite a long big place. And then here you have the Lakshadweep.
ये छोटे आइलैंड्स हैं. This is the Lakshadweep and that side is the Andaman and Nicobar. Okay children. So यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी. I just wanted to show you this complete areas. This is the Arabian Sea here. This is the Bay of Bengal here. तो ब्यूटी इन इंडिया इज़ अमेजिंग, जिसको कि हमको हमेशा याद रखना है. ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे वी आर फिनिशिंग. नेक्स्ट क्लास में विल बी कैरिंग ऑन विद द सेम चैप्टर. टिल देन चिल्ड्रन, thank you so much and all the best to you.